जी अस्सलाम वालेकुम students I hope you will be fine and will be enjoying your good health with your family. Today we will start law of momentum. Okay. अब इसमें हमने स्टूडेंट्स इसमें हम देखेंगे एक्चुअली टॉपिक है जी एक्चुअली टॉपिक इज़ दैट के फोर्स एंड द मोमेंटम. ओके. Now question can be asked from you people like this: state and prove Newton's second law of motion in terms of momentum, or show that rate of change in momentum of a body is equal to applied force on it. There are two ways to ask the questions from you people. Okay, so simply I explain it. Consider you have a body and this body has a mass m. I am considering, and that body is moving with initial velocity vi, right? And let a force f acts on it. When you apply force on it, it produces acceleration in it. Due to it, its final velocity becomes vf after time t. Definitely consider a body which has mass m. Its velocity, initial velocity is vi. When you apply force on it f, it produces acceleration on it a. Okay, and when it produces acceleration in it, its final velocity becomes vf, and it takes some time, that is t. So its initial momentum क्या होगा? What will be its initial momentum? So definition of momentum, you know, product of mass and velocity mv, that is called momentum. So its initial momentum for initial velocity, that is mi. Its final momentum for final velocity, it is a mvf. Okay. Now what will be the change in momentum? Change in momentum can be find out like this: final momentum minus initial momentum. So final momentum is pf, initial momentum is pi. Then putting the values means this original formula, that is mvf minus mvi. By taking common mass, you will get vf minus vi, right? So this is, now I want to find the change in momentum. So change in momentum means simply dividing the momentum by time, any time divided by time. This is change in rate of change in momentum by time. Del p upon del t, this is momentum, this is change in momentum. Momentum can be written like this: m into vf minus vi t. Okay. So this is rate of change in velocity. Rate of change in velocity is called acceleration. So this is ma. This is ma. So ma, this is Newton's second law force. So it is equal to del p upon t, this one. Okay. सिंपली बट स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं कि ये जो क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है कि आप प्रूव करें. ओके. शो दैट रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स. मीन्स वो कह रहा है कि मैंने किसी बॉडी के ऊपर, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई की है. ठीक है. जो फोर्स वो अप्लाई की गई है, वो फोर्स लगी है उस बॉडी के ऊपर, तो वो बताएं डेफिनेटली बॉडी है, उसका मोमेंटम होगा, उसमें मूवमेंट और वो मोशन में होगा, हरकत करेगा, उसके अंदर जो है मैस भी होगा उसका बॉडी का डेफिनेटली. तो जो उसमें चेंज आएगा मोमेंटम में, मुझे बताएं कि वो चेंज जितनी फोर्स अप्लाई की गई है क्या उसके इक्वल है. ये आपने प्रूव करना था, राइट.
तो स्टूडेंट्स उस जो हमने अभी इक्वेशंस प्रूव किया है डेल पी अपॉन टी इक्वल टू एफ, तो उससे हमें ये पता चलता है, इससे मैंने क्या बता दिया, दिस इक्वेशंस गिव्स एन अदर स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू एम ए। अब ये एक दूसरा एक और स्टेटमेंट बन गई न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जब आपने न्यूटन सेकंड लॉ में ये था ना, एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। अब यहाँ देखें जब फोर्स, अब इसको ऐसे डिफाइन करें कि जब व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी और दिस फोर्स विल बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी। ओके, तो वो हमने वही ड्राइव किया डेल पी अपॉन टी, और ये जो फोर्स है वो इक्वल होगी रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी। दिस इज एन सेकंड स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। ओके, अच्छा इसी के रिलेटेड एक तो एग्जांपल है वो आपने होमवर्क करनी है, मैं इसी के रिलेटेड कुछ और आपको एग्जांपल प्रोवाइड करता हूँ, आपको मज़ीद इसका कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये कहाँ पे, मतलब इसका यूज़ कहाँ पे, ये कहाँ का आपको नज़र आती है कि अच्छा ऐसा पॉसिबल है रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में। ये एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, इट इज़ पेनफुल टू किक अ स्टोन बट नॉट टू अ फुटबॉल, वाई एक्सप्लेन। अब मुझे इसकी रीज़न बताएं कि जब आप एक पत्थर को, स्टोन को किक मारते हैं आपको तकलीफ़ होती है, डेफिनेटली होती है, अगर बेशक आपने शूज़ वगैरह पहने भी हो। व्हेन यू किक अ फुटबॉल यू डोंट फील पेन, व्हाट्स अ रीज़न। अब इसकी रीज़न क्या है, ये साइंटिफिकली फिज़िक्स इसमें क्या कहती है कि ये लॉजिकली ये कैसे है। अब मैं सबसे पहले तो आपको ये एक रिलेशन दे रहा हूँ, दिस इज़ ठीक है, एफ इज़ इक्वल टू डेल पी अपॉन टी। अब इस पर आप फोकस करें। अब इसमें ये नज़र आ रहा है कि टाइम अगर ज़्यादा होगा तो फोर्स क्या होगी, कम होगी, और टाइम अगर कम होगा तो फोर्स क्या होगी, ज़्यादा होगी। ओके, अब इसका मतलब ये हुआ कि इस रिलेशन से आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि मतलब क्या है कि स्मॉलर कोलिजन टाइम होगा तो ग्रेटर विल बी फोर्स। जितना वो कोलिजन टाइम, मतलब जब आप किक मारते हैं उसमें कोलिजन टाइम क्या होगा, जितना कम होगा उसमें उनके पार्टिकल्स के बीच में जो कोलाइड करेंगे आपस में, तो उतनी फोर्स क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब स्टोन में क्या होता है, जैसे स्टोन एक हार्डर है एज़ कम्पेयर टू फुटबॉल, जो कोलिजन टाइम है ना स्टोन के अंदर, ठीक है, जब आप किक करते हैं स्टोन को तो वो स्मॉलर है फुटबॉल की निस्बत, क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत स्मॉल जो है वो मूव करते हैं, बड़ी मुश्किल से मूवमेंट उनकी होती है। तो जब वहाँ पे वो स्टोन एक हार्ड चीज़ है एज़ कम्पेयर टू फुटबॉल, तो फुटबॉल को जब वो किक करते हैं, व्हेन यू किक द फुटबॉल द पार्टिकल्स ऑफ फुटबॉल्स दे कोलाइड वेरी फास्टली विद ईच अदर, राइट। जब वो ज़्यादा फर्स्ट, मतलब उनका टाइम क्या होता है, बहुत शॉर्ट होता है, और टाइम जो है वो जब शॉर्ट होगा तो उस पर फोर्स क्या होगी, ग्रेटर फोर्स प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो दैट्स वाई कि आपको क्या होता है जो है वो कि जब आप स्टोन्स को किक मारते हैं तो आपको क्या होता है जी, पेन फील होता है। ओके, एक चीज़ जिसकी ये होगी। सिमिलरली एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ, ये देखें इसी लॉ की जो अभी हमने प्रूव किया है कि चेंज इन मोमेंटम जो फोर्स इक्वल है, कि वाई पैकिंग मटेरियल्स प्लेस्ड बिटवीन ग्लास वेयर्स, ठीक है, पैकिंग मटेरियल्स को ग्लास वेयर्स के बीच में क्यों रखा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब इस पे भी आप ज़रा गौर करें। जो जब पैकिंग मटेरियल को ग्लासवेयर के बीच में रखा जाता है तो उनकी कूलिंग टाइम जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है, और उससे क्या हो जाता है, जब कूलिंग टाइम इंक्रीज़ करता है तो फोर्स क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। जब फोर्स रिड्यूस होगी तो डेफिनेटली वो जो अंदर मटेरियल पड़ा है वो सेफ़ रहेगा। ओके, आप गाड़ी में लेके जा रहे हैं, आपको पता है कि रास्ते में हर्डल्स भी आएंगे, कोई प्रॉब्लम, तो आपने ऐसी कोई सोफिस्टिकेटेड चीज़ें आपने उसको रख लिया, लेकिन आप पैक किए बगैर रखेंगे तो डेफिनेटली वो टूट जाएगी। तो उसी चीज़ को अगर उसे आप पैक कर लें और जो है उसे आप ग्लास वेयर्स के बीच में रख लें तो डेफिनेटली क्या होगा, वो ग्लास वेयर्स के बीच में रखेंगे तो उनका जैसे कोई ऊपर फोर्स पड़ेगी उनका कूलिंग टाइम बढ़ेगा। जब कूलिंग टाइम मीन्स इलेक्ट्रिसिटी आप समझें, या उनके अंदर मूवमेंट बढ़ेगी, जब मूवमेंट बढ़ेगी तो फोर्स कम होगी, फोर्स कम होगी तो डेफिनेटली वो चीज़ क्या रहेगी, सेफ रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली नेक्स्ट आ जाएं जी, इसी की और एग्जांपल मैं इसी के दे देता हूँ कि वाई सीट बेल्ट्स आर एडवाइज टू वेयर वाइल ड्राइविंग।
जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो सीट बेल्ट क्यों पहनते हैं, ये भी एक न्यूटन्स चेंज इन मोमेंटम वाला अप्लाइड फोर्स के इक्वल है। ठीक है, अब इस दो वेज हैं, सीट बेल्ट हमारे लिए यूज़फुल हैं टू वेज थ्री। एक वे तो ये कि जब आप एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करते हैं पर्सन को, मतलब आप बेसिकली क्या करें, जब सीट बेल्ट पहन रहे हैं ना तो वो उस पर्सन को एक्सटर्नल फोर्स मिल रही है। ठीक है, एक तो ये फ़ायदा है। अब दूसरा क्या है, दूसरा इसका वे है कि सीट बेल्ट क्या करते हैं, स्लोली एक्सटेंड करते हैं। जब एक्सटेंड करते हैं तो उनका कूलिंग टाइम क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। और उस जब कूलिंग टाइम इंक्रीज़ होता है तो उसकी फोर्स क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। जब फोर्स रिड्यूस हो जाती है तो पर्सन क्या होता है, सेफ रहता है। राइट, ये चीज़ भी होगी। अब नेक्स्ट है जी इसी के अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया, ये इसकी मैंने कुछ आपको एग्जांपल दे दी हैं। ठीक है, अब सिस्टम की तरफ आ जाए। सिस्टम क्या है, व्हाट इज़ अ सिस्टम, डेफिनेट इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पार्टीज विद इन सर्टन बाउंड्रीज। ठीक है, एक बाउंड्री के एक मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ स्कूल की, स्कूल सिस्टम की। अब स्कूल सिस्टम की बाउंड्री के अंदर when जो एंटर देन द स्कूल, ठीक है, अब हम स्कूल की बाउंड्री जो है उस रेंज में आ चुके हैं। अब स्कूल के अंदर अब आपके लिए नेसेसरी है, कंपल्सरी है कि आपने स्कूल्स के सारे रूल्स को फॉलो करना है, जो कोऑर्डिनेटर से असाइन किए जाएं, जो टीचर से असाइन किए जाएं, जो एडमिनिस्ट्रेशन से असाइन किए जाएं। इट्स कंपल्सरी नेसेसरी फॉर स्टूडेंट्स के टू फॉलो द, एक्चुअली टीचर्स के लिए भी, वहाँ पे जो भी फैकल्टी मेंबर सब के लिए ज़रूरी है कि वो रूल्स को फॉलो करें, बिकॉज वो सिस्टम के अंदर हैं। लेकिन जैसे आप स्टूडेंट्स निकलते हैं स्कूल से बाहर, अब मार्केट जाते हैं तो आपको वो आप स्कूल वाला आपका जो है बिहेवियर नहीं होता, आपका एटीट्यूड कुछ और होता है, तो आप उस सिस्टम में हैं। तो ये वो इसका मतलब ये है कि वो स्पेसिफिक है, वो सर्टन बॉडीज़ के अंदर जो भी आप रोल परफॉर्म करते हैं। क्लियर। अच्छा, आइसोलेटेड सिस्टम क्या हुआ, आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स जो एक्ट नहीं कर रहे, बॉडीज़ हैं लेकिन कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर आके इम्पेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, कोई एक्सटर्नल पर्सन आपके ऊपर, मतलब आप एक सिस्टम चला रहे हैं, यू आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, कोई एक्सटर्नली आपके ऊपर जो है वो लोड नहीं होना चाहिए, कोई दबाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ऐसे सिस्टम्स को आप कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।